Additional Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Shri Hem Pandey, and other senior officials present here. Today's format of the press conference will be Honorable Minister will make his opening remarks along with a PowerPoint presentation. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन इस मंत्रालय में एक साल में हमने बहुत कुछ परिवर्तन किया है और इसका एक समाधान हमारे पास. We are happy to say that we have made some difference to the ministry. हम मानते हैं कि हमारा मैंडेट पर्यावरण की रक्षा करना है. Our mandate is clean air, clean water, clean energy, clean environment and more green. This is our mandate. And to that end, we have done many works which I want to showcase. Major decisions have been taken. We have made processes online and simple, transparent, but the environmental conditions have been made rigorous. They have been made more stringent. We are taking help of technology for better management of environment, and we are launching schemes with public participation. So these are the main features of our thing. So first, towards more green. As you know, we have introduced CAMPA bill. This is compensatory afforestation. This 38 for last 10 years. The amount which should have been used on ground for more afforestation has been kept in bank deposits. To come out of this wriggle, we are unlocking 38,000 crores for states for aggressive afforestation. That's a real Green India mission. And it will show its impact in next 3-4 years. 14th Finance Commission has already given 7.5 weightage for the first time for forest cover. This is very important. And so therefore $9 billion, that is 55,000 crore rupees, are now available to the state depending on their forest cover to improve it further. And so this is very important. We are revising national forest policy to ensure more greening, improving forest quality with participation of tribals and forest dwellers. This is important. We recognize that only forest dwellers, tribals and people can manage forest better, can really participate in Green India mission, can stop illegal felling, and therefore they are our partners. Forest fires with tremendous new technological help and alerts have been reduced by 15% in 1 year. Forest stocking means total volume of forest. There are some dense forest, there are some medium forest, moderate, and some are degraded forest. But overall forest volume has now stabilized this year. It was earlier negative. From negative, we have progressed to stability, and from next year onwards, it will be enhancement with both 55,000 and 38,000 crores going into greening India. Effective national afforestation program was carried out this year on 75,000 hectares. It's a huge program. One thing we always say when and people also ask questions, you also ask, how much land is diverted for non-forest purpose? But let us understand there are two formulas. Wherever we divert the land, allow some private project,
we asked them to give equal amount of land in non-forest area, which is non-forest land, but which is now added to the forest land. So last year, 20,000 hectares is new addition to the forest area. It's a new addition, it's an addition to forest area. It is not reduction of forest area. And for public projects, which were many this year, more than this, but they were, because public projects of many states were pending for years together, we have taken policy decisions on all such projects. And those projects, they pay for greening double degraded forest land. So they don't give you additional land for the forest, but they pay double the amount of Campa for afforesting double size of degraded land. So this is a new dimension. We are launching 2-3 new schemes. One is to avoid animal-human conflict. We have decided to improve fodder and water availability in forest itself, many forest areas, in protected areas. Wildlife comes out of forest because if there is no enough fodder, there are no preys for the wildlife. And second is, if there is no water, they come out. So augmentation of water and fodder resources within forest area is a real way forward. And this was told to me by people where actually there was tremendous animal-human conflict in Kolhapur area. We are also preparing for a new scheme of green credit. Our Prime Minister Narendra Modi always has emphasized on, not on carbon credit, because he says that carbon credit is like नदी में स्नान करके पैसा देकर आप पाप मुक्ति पाओ. ये ग्रीन क्रेडिट है, ये पॉजिटिव है. That's a little negative concept. This is real positive concept. The main challenge is how to make forest cover more in degraded land, because nearly 1/3 of the forest land is degraded. So how to green it faster? We are also chalking out a scheme where public-private partnership can happen for greening in forest. 14 states have submitted perspective plans of Green India Mission, and we are giving them finance. Better, because we have maintained forest better, the wildlife management is also better. Tiger population is now 2,226 and ever growing. Now as of I am talking today, it must be around 2,400 or more, something. But this is 70% of the world's tiger population. Lions, there is 24% growth, and with 523 lions. There is increase in rhino, number of rhinos also, 2,889. And only 2,400 in Kaziranga itself and others elsewhere. And elephants are more than 30,000. So it's a good wildlife. 3 new tiger reserves have been sanctioned, 1 in Maharashtra and 2 in Uttarakhand. 4 tiger protection force and 1 rhino protection force we have sanctioned from central funds. 30 poachers got killed. That's the severe action. Poaching was a big problem. We decided to take tough action. And our brave Jawans, forest guards, have also died, sacrificed their lives in many cases. But they fought it. They fought with poachers. And in such encounters where poachers killed rhinos or were killing rhinos or were going into forest to kill rhinos, there was an encounter. And in that, more than 30 poachers got killed. That's a tough action. That's a tough message we want to give. We have burnt the confiscated wildlife articles. And this we want to make an annual feature. And state inventory is already ordered
Because naturally, tigers will die, naturally elephants will die of their life, after their life. So where their skin and tusk and horns go, they go into the straight treasury at a different place. So we said, we have ordered that there has to be a proper stock taking of it, and so inventory we have ordered. We have started relocation, voluntary relocation program. Those families who want to come out of forest, we are giving 10 lakh rupees to them. And such 651 families voluntarily have come out of forest in 4 protected areas. Then National Board of Wildlife. For 17 months, 13 months it did not meet. We reconstituted National Board of Wildlife, and till today we have done 4 meetings in the span of last 7-8 months, and we have approved 225 proposals with stringent environmental conditions. Eco-sensitive zone was an area of concern because by court order, there are 600 protected areas in the country, and because the justified buffer zone was not created by the state and center earlier, court said that till you decide it, it will be 10 kilometers. And we have decided, we have started a big program on that, brought all states together, started working across table, without sending letters and queries and umpteen years, we worked together, and now we put up new expert teams to verify the boundaries suggested by states, and we have approved 222 eco-sensitive zones, so there will be no confusion. For the first time, well-defined, well-justified buffer zones, which are addition to the earlier existing protected area limits. This is an additional buffer zone we have created. That's wildlife conservation. That's for nature. That is how our government is working for better environment. Then there is better animal welfare practices also. Animal in circuses have been banned. Manza we have banned. Grants to gaushalas and shelters for stray animals, including dogs. Streamlining National Institute of Welfare, National Institute of Animal Welfare. And most importantly, we are launching new diploma and degree courses in animal welfare, because in the country there are no such degrees and diploma courses. This is a new beginning. Preserving biodiversity is a very important aspect. We have only 2.5% of the world landmass. We have 17% of human population and 17% of cattle population of the world. It's a huge pressure. But still we have 8% of biodiversity species in India. We must preserve them. We must increase them. And 2 days ago, I published a book, Discovery of New Animal Species, discovery of new plants. That's how our research is working. And that biodiversity, one major achievement this year is Nagoya Protocol, which gives a legally binding internationally framework, has been ratified by more than 50 countries. So it's now, Nagoya Protocol is an international protocol, and by which we will get access benefit, because research is done elsewhere, patents are taken elsewhere, people produce on Indian bioresources. We will get part of it, part of the penny. And these access benefit guidelines are issued. National Mission on Himalayan Studies. You know, Himalaya, we are proud of Himalaya, but we have no studies done. And even IPCC faulted on receding glaciers, when they were asked, this is not correct. Then they said they based it on a
essay by some Indian researcher. And when people put him a question, how did you research? He said, I did it on hearsay. So that was the basis on which glaciers were told that they were receding, and IPCC had to amend it. So we are now, to remove this deficit, data deficit on glaciers, on landslides, on sustainable methods of building roads and tunnels it's a challenge in Himalaya. It's a baby mountain, and weather and other related issues, seismology. So all these things will be studied in that. And more than 150 crores have been budgeted. Effective pollution control is an important achievement of this government. We have mandated 3,206 industries to fix 24/7 pollution monitoring devices on their effluent discharge point and on their chimneys. हर कोई उद्योग जो प्रदूषण करता है हवा में भी और पानी में, यह हम बंद करना चाहते हैं। और इसके लिए हमने 3,206 जो बहुत ज़्यादा प्रदूषण करने वाले उद्योग है, उन औद्योगिक इकाइयों को बंधनकारी किया है और बहुत लोगों ने लगाए भी है। 24 घंटे निगरानी होगी। अब इंस्पेक्टर जाएगा तब नहीं होगा, 24 घंटे निगरानी होगी। 15 मिनट भी ज़्यादा प्रदूषण हुआ तो हमारे यहाँ ब्लिप होता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, तो पता चलेगा कि कौन कर रहा है। तो ये नहीं होने देंगे, उसको तुरंत लीगल कार्रवाई होगी। तो ये एक बड़ी पहल है, इसी से प्रदूषण खत्म होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और मुझे खुशी है कि इंडस्ट्री ने साथ दी है, किसी ने ये नहीं कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं, हम नहीं करेंगे। सबने कहा कि करने की ज़रूरत है, किसी किसी की दिक्कतें थी, हमारी इंडस्ट्री के साथ बात कर रहे हैं। कुछ लोग, बहुत लोगों ने बिठाए हैं, जिनका बिठाना बाकी है उन्होंने बैंक गारंटी दी है। तो जैसे जैसे वो बिठाते जाएंगे उनकी बैंक गारंटी रिलीज होती जाएगी। प्रधानमंत्री ने एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया, ये सबसे बड़ी पहल है। परसों एक चर्चा में साफ हुआ कि 2007 से ही दिल्ली की हवा बहुत खराब हो रही थी, बिगड़ती गई बिगड़ती गई बिगड़ती गई। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय चर्चा नहीं हुई, नहीं तो अभी सुधर जाती पहले ही, क्योंकि वो सरकार भी तो कुछ काम करती। लेकिन अब चर्चा शुरू है, उसका हमने स्वागत किया, हमने डिनाई नहीं किया, हमने उपाय किए। 3 बार मीटिंगें की, 3 महीने का एक्शन प्रोग्राम, 5 सरकारें, 3 नगर निगम और बाकी सबको लेकर साथ में हमने एक 3 महीने का एक्शन प्रोग्राम अभी चल रहा है, उसमें कुछ तरक्की हुई है। और रोज 5 बजे हम बुलेटिन देते हैं 8 मानकों पर। तो आप सबको भी दरख्वास्त है कि आप अपने मालिक और एडिटर्स को कहो कि ये भारत का अधिकृत नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसको छापो। ये कॉम्प्रिहेंसिव है, 8 पैरामीटर्स पर है। कितने दम विदेशी सोर्सेस पर निर्भर करेंगे। PSUs ने हमें बहुत अच्छा समर्थन दिया है। अभी 10 सिटीज़ में हमारा है, 66 सिटीज़ में ये शुरू होगा। उसके लिए जो फंड्स देने थे वो PSU ने बहुत ज़्यादा प्रॉमिस किए हैं। एक पोल्यूशन में हमने किया है, सीमेंट उद्योग सबसे 2 नंबर का प्रोडक्शन दुनिया में भारत में होता है सीमेंट का, और सीमेंट अत्यधिक प्रदूषण भी करता है। तो उसके मानक स्ट्रिंजेंट किए हैं ताकि वहाँ से प्रदूषण कम होगा। तो ये नए नॉर्म्स लागू हुए और सभी इंडस्ट्री ने स्वीकार भी किया। सैंड माइनिंग एक माफिया का राज अनेक जगह बन गया। उसका एक साइंटिफिक हमने निकाला है कि सैटेलाइट से सैंड कहाँ जमा हो रही है उतनी ही और वही सैंड माइनिंग होगी, ठीक तरीके से होगी, ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी। स्टोन क्रशिंग हो, ब्रिक क्लींस हो, फर्टिलाइजर, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, पेपर, हर एक क्षेत्र के मैंने अभी रोज़ शुरू किया है। रोज़ एक एक इंडस्ट्री का हम रिव्यू कर रहे हैं कि भाई इंडस्ट्री में अभी पोल्यूशन की क्या स्थिति है, अभी के नियम क्या है, उसका कितना पालन हुआ है, नई टेक्नोलॉजी क्या है, और पोल्यूशन के नॉर्म्स और कठिन कैसे बनाए जाएंगे ताकि प्रदूषण कम होगा, ये हम कर रहे हैं।
सबसे बड़ी बात, 124 उद्योग जो पोल्यूट कर रहे थे, डिस्पाइट आवर वार्निंग वी हैव क्लोज्ड। 124 उद्योग हमने बंद किए, धंधा चलेगा। अब प्रोसेसेस आसान हो गए, प्रोसेसेस ट्रांसपेरेंट हो गए, डिले खत्म हो गया, लेकिन अमल का दंडा चलेगा। और इसलिए ऐसे नॉन कंप्लाइंग 124 जो उद्योग थे वो बंद किए। फिर बाद में उन्होंने 3-4 महीने में फिर तुरंत सुधरते हैं, और जैसे वो कंप्लाइंग कंडीशंस में आ गए फिर उनको शुरू करने को दिया। आज भी लेकिन 15 उद्योग बंद है। न्यू स्टैंडर्ड्स फॉर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये एक बड़ा समस्या था, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये हमने इशू किए हैं। शुगर, टेक्सटाइल, टैनरी, डिस्टिलरीज, इनको जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मैंडेट किया है। कितना प्रदूषण होता था स्लरी का, स्पेंट वॉश का, ये सब अब बंद होगा और पानी की बचत होगी। ब्लैक लिकर डिस्चार्ज सक्सेसफुली प्रोहिबिटेड, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। गंगा के किनारे पर ब्लैक लिकर डिस्चार्ज जितना होता था वो बंद हो गया। इंस्पेक्शन के लिए भी हमने इंस्पेक्टर राज न हो, इसके लिए इंस्पेक्शन के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस बनाए, और जो वर्गीकरण था इंडस्ट्री का, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, उसको हमने पोल्यूशन पोटेंशियल के आधार पे अब नए सिरे से उसका वर्गीकरण किया है। स्वच्छ भारत हमारा एक मिशन है। नेक्स्ट स्लाइड। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत में घन कचरा और सारा कचरे की, जब कूड़े की व्यवस्था होगी तभी तो स्वच्छ भारत होगा। तो कूड़े की व्यवस्था के लिए हमने न्यू हजार्डस वेस्ट रूल्स नोटिफाई कर दिए, न्यू सॉलिड वेस्ट रूल्स, उसी में कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट रूल्स भी है, ई वेस्ट रूल्स, प्लास्टिक वेस्ट रूल्स, बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स, और ये हमने वेबसाइट पर रखे हैं moef.nic.in, आप भी देखिए और अपने सुझाव दीजिए। 31 जुलाई तक ये पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रखा है। लोगों के सुझावों के आधार पर 1 अगस्त से फिर तुरंत अगस्त महीने में ये लागू करेंगे। क्लीन वाटर एंड रिवर्स, इसमें भी बहुत सारे मुद्दे हैं। क्लीनिंग में हमने क्या किया, एसटीपी का क्या किया, बायो रेमेडिएशन किया है, बहुत सारे हैं, वो आपको दे रहा हूँ मैं। जैसे मैंने कहा, एनफोर्समेंट का इस साल हमारा मूल मुद्दा है एनफोर्समेंट। भारत में कानून बहुत है, भारत में नियम भी बहुत है, भारत में गाइडलाइंस की कमी नहीं है, लेकिन भारत में एनफोर्समेंट की कमी है, अमल की कमी है, वो हम सुधारना चाहते हैं। और इसलिए हम कानून भी बदल रहे हैं, हम नियम भी बदल रहे हैं, हम पेनल्टीज भी बढ़ा रहे हैं, और हम इस दिशा में चल रहे हैं। इसमें प्लास्टिक का 40 माइक्रोन से कम कैरी बैग का उत्पादन करना प्रतिबंधित है। हमने रेड्स किए, और यूपी में 11 और दिल्ली में 7 यूनिट्स क्लोज किए हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड मैनेजमेंट शुरू किया है, तो कैमरा ट्रैप भी है, इलेक्ट्रिकल सर्वाइलेंस है, हम ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सभी 24/7 मॉनिटरिंग डिवाइसेस का जियो मैपिंग कर रहे हैं, और जीआईएस बेस्ड डिसीजन सब सिस्टम की है। फॉरेस्ट अप्रूवल को अब फाइल में देखकर नहीं मान्यता देते, फॉरेस्ट अप्राइजल कमेटी बैठती है तो वहाँ जाती है, उस जगह पर जाके गूगल अर्थ से देखते हैं वहाँ क्या स्थिति है, वो देखकर फिर मंजूरी या नामंजूरी देती है, जो कंडीशंस लगाती है। तो ये एक नया काम किया है हमने। जो भी नई समस्याएं आई उनको तुरंत कमिटीज हम नियुक्त करते और भेजते हैं। एक कोल्हापुर में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ था एक विनाशकारी प्रदूषणकारी उद्योग के कारण, तो वहाँ हमने कमेटी भेजी। महाराष्ट्र सरकार ने अब एक एक्सपर्ट कमेटी नियुक्त की है, उससे भी हम सहयोग कर रहे हैं, और तब तक उसका प्रोडक्शन को परमिशन नहीं दिया है। लैंडफिल इन मुंबई में क्या करना चाहिए, क्योंकि 10,000 टन रोज कचरा जमा होता है। बंगलुरु में तुरंत हमने हमारी टीम भेजी कि लेक्स में एक तालाब को ही आग लगी,
अब पानी तो आग बुझाता है, यहाँ तो अब पानी में ही आग लगी प्रदूषण के कारण। और इसलिए आज मुझे खुशी है कि कर्नाटक सरकार ने लेक डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना की है। हमारे प्रोएक्टिव कदम, हम सभी सरकारों के साथ न्याय करते हैं, सभी सरकारों को साथ लेकर काम करते हैं, और इसका परिणाम हुआ कि एक प्रोएक्टिव स्टेप हो गई। रिवर पोल्यूशन इन पुणे एंड अराउंड रिवर्स थी, उसकी भी दिशा हुई, और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इन खरगोन एंड इलीगल स्लॉटर हाउसेस, इनका भी हमने कमिटीज तैयार किया। हमने प्रोसेसेस कितने इंप्रूव किए, आपको मालूम है ऑनलाइन प्रोसेसेस किए, उसमें 3200 प्रोजेक्ट्स आज ऑनलाइन हमारे चल रहे। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि फाइल कहाँ है ये प्रोजेक्ट प्रॉपोनर देख सकता है, अगर एक जगह ज़्यादा रुकी तो वो कंप्लेंट कर सकता है। और राज्यों में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है प्रोसेस को, उसको भी हम उनके साथ बैठकर दुरुस्त कर रहे हैं प्रोसेस को, कि वहाँ से जल्दी आएंगे। आज हमारे यहाँ पेंडेंसी बहुत कम है, लेकिन वहाँ है, वो हम कर रहे हैं। फिर सारे ONM, इतने ONM हमारे मंत्रालय से निकले थे पिछले 10 साल में, कितने हुकुम, कितने ONM, कितने सर्कुलर्स, कितने नोटिफिकेशन, सबको इकट्ठा किया, क्योंकि नहीं तो पता ही नहीं चल रहा था। उसके लिए लोगों को एक्सपर्ट्स बिठाने पड़ते थे कि नियम क्या है, तो वो हमने किया। सबसे बड़ी उपलब्धि, जिस प्रोसेस को 1 साल लगता था TOR मिलने के लिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस मिलने के लिए, हमने 39 के 39 जिसके लिए EC की जरूरत होती है, सभी क्षेत्रों के स्टैंडर्ड TORs तैयार किए हैं। अब 1 महीने में वो काम हो रहा है, जिसको 15-16 महीने लगते थे। यानी कंडीशन में कोई कमी नहीं की, लेकिन ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म किया। एजुकेशन और इंडस्ट्री के लिए EC की जरूरत नहीं रखी, 20,000 मीटर से ज़्यादा है तो भी, लेकिन जिसमें प्रदूषण नहीं होता ऐसी इंडस्ट्रीज और एजुकेशन, लेकिन उनके जो एनवायरनमेंट के कंडीशंस थे वो बहुत कड़े कर दिए हैं, तो स्टैंडर्ड्स कड़े किए हैं। डिसेंट्रलाइजेशन हमने किया। मेरे यहाँ फाइल के ढेर होते थे, अब हमने राज्यों को अधिकार दिया है। 40 हेक्टेयर तक का जो प्रोजेक्ट आते हैं और जो नई लैंड लेना है और यहाँ प्रोजेक्ट मंजूर करना है, यह अधिकार रीजनल एम्पावर्ड कमेटी को दिए। उसमें राज्य के अधिकारी भी है, हमारे अधिकारी भी है, वहाँ एक्सपर्ट्स भी है, तो एक बड़ी मल्टी स्टेक कंपनी की। फिर बाकी मैंने डिटेल दिए है कि डिसेंट्रलाइजेशन की तरह हमने राज्यों को ज़्यादा अधिकार दिया। पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये सबसे हमारा पहल है बड़ी। इस मंत्रालय के कपाट बंद थे, हमने कपाट खोल दिए। अब लोग रोज आते हैं, बिल्डिंग को देखते हैं, पर्यावरण का संदेश लेकर जाते हैं। और अभी मैंने पूना में परसों लॉन्च किया स्कीम अर्बन फॉरेस्ट, नागरी वनोद्यान योजना। शहरों में बगीचे हैं लेकिन वन नहीं है, जंगल नहीं है। दिल्ली में है क्योंकि पहले से प्रोटेक्ट किया है, लेकिन जंगल अच्छा हो तो वो जंगल का निर्माण, जहाँ जंगल जमीन है लेकिन उस पर जंगल नहीं है, ऐसे जगह अर्बन फॉरेस्ट्री, और हर शहर में जंगल की ज़मीन है और उसमें कर रहे। सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये भी सब उसी का हिस्सा है। फ्रेश एयर माय बर्थ राइट, 20 शहरों में जहाँ हवा के प्रदूषण की बात ज़्यादा है वहाँ लोगों की भी पार्टिसिपेशन होगा। लेन मेंटेन करेंगे, अपना व्हीकल मेंटेन करेंगे, कार पूलिंग करेंगे, एक नज़दीक के काम साइकिल से करेंगे, एक आध दिन वाहन का उपयोग नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स उसको 30% सब्सिडी दी है वो चलाएंगे। तो ऐसा ऐसा ये प्रचार हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन। सेव वाटर सेव एनर्जी, एक नया प्रोग्राम हम करना चाहते हैं, स्कूल नर्सरी। स्कूल नर्सरी, उसका कार्यक्रम ऐसा है कि एक स्कूल में 1000-2000 जितने भी बच्चे हैं उतने ही हर साल पौधे लगाएंगे। तो फॉरेस्ट विभाग उनको तैयार करके देगा, वहाँ वो बच्चा एक एक बीज रोएगा। वो बीज का पहले सैपलिंग होगा, वो बढ़ेगा थोड़ा, उसका कैसे ख्याल करना है वो सीखेगा,
फिर वो थोड़ा बड़ा होने के बाद वो ले जाएगा, घर में लगाएगा, बच्चे के साथ पेड़ भी बढ़ता जाएगा, पेड़ के साथ बच्चा भी बढ़ता जाएगा, पढ़ता भी जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी स्कीम हम शुरू कर रहे हैं। एनवायरमेंट मिनिस्टर्स का और फॉरेस्ट मिनिस्टर्स का 3 दिन का हमने कॉन्क्लेव किया। देश के सारे प्रमुख वन, पोल्यूशन और सभी अधिकारी एनवायरमेंट के उपस्थित थे। लॉज में रिवैम्प कर रहे हैं, कैंपा तो दिया है, एक हायर पेनल्टीज। आज क्या है, बड़ा पेड़ काटने पर केवल 1000 रुपये फाइन है। तो ये तो लोगों को फायदे का सौदा है, पेड़ काटो 1000 रुपये भरो, घर जाओ। तो ये नहीं चलेगा, इसलिए पेनल्टी बहुत बढ़ाने वाला एक बिल अभी हमारे अंतर मंत्रालय के कंसल्टेशन में है। और जो TSR सुब्रमण्यम समिति की थी उस पर राज्यों की प्रतिक्रिया आई है। सब विचार करके सभी वो शीतकालीन सत्र तक ये हमारा रिवैम्प का तैयार हो जाएगा खाका, और फिर हम लाएंगे बिल। और उन्होंने दिया, हर सुझाव मान्य है ऐसा नहीं, कुछ मान्य है कुछ नहीं है। तो जो भी सबकी राय आई है उससे जो पर्यावरण के लिए जो अच्छा है वो करेंगे। क्लाइमेट चेंज एक बड़ी चुनौती है इस वर्ष की और सदा के लिए, और पेरिस में समझौता होने जा रहा है। हम चाहते हैं कि पेरिस शुड सक्सीड, बट पेरिस शुड सक्सीड फॉर mitigating the challenge of climate change. And India is playing its proactive role, effective role in coordinating developing world. And we have taken pre-2020 actions, though we were not mandated. And now we are asking developed world to walk the talk, to take pre-2020 actions, more ambitious targets. And we have given many suggestions which I have given there. Then policy-based decisions is an important. We have made decentralization. We have approved defense projects. We have given general approval to defense projects without compromising on any environmental conditions. They will remain, but they will not need to come here and get delayed. Linear projects, रोड, रेल, सड़क, इसके लिए स्टेज 1 परमिशन मिलने से ही वो काम शुरू कर सकते हैं। इरिगेशन, अपग्रेडेशन, स्ट्रेंथनिंग रोड। आज वनों में जो सड़कें थी छोटी छोटी, उसको रिपेयर नहीं करने देते थे पहले। अरे ये तो आदिवासियों पर अन्याय है। जो आदिवासी वहाँ रहते, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, फॉरेस्ट में रहने वाले, वही तो जाते उस छोटे छोटे रास्तों पर, तो उनको गड्ढे भरे रास्ते होते थे, तो वो उसका रिपेयरिंग करना हमने अलाउ किया है। मेजर प्रोजेक्ट्स है, उसकी एक लिस्ट मैंने अलग दिया है। जैसे आज ही हमने मुंबई के कोस्टल रोड को एक प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है, और उसको प्रक्रिया पूरी होगी, जल्दी नोटिफिकेशन उसके बारे में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन होगा। बाकी भी रेलवे, सड़क, इरिगेशन, पोर्ट, एयरपोर्ट, नेवी के सीबर्ड जैसे प्रोजेक्ट्स, गोवा की माइंस जो, और तेलंगाना का धमल चल्ला प्रोजेक्ट, ऐसे जो बहुत महत्वपूर्ण पब्लिक यूटिलिटीज़ है उसको जो मंजूरी दी है वो भी मैंने दी है। बस यही कहना है आपके लिए। थैंक यू सर। नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन। या लेट्स स्टार्ट विद रीमा। ठीक है। Yes, sir. Yes. Sir, happy to say that you are admitted poaching is a big concern now. Rhino poaching is a regular scenario in Assam, where international smuggler and involved. So, to stop this international smuggling in poaching in rhino, what you are doing in last 1 year? You have formed some 3-member task force even to protection rhino. No, and we have already sanctioned the protection force, and Assam government is now started process to appoint people actually, which will be from the surrounding villages, because these youths know by heart the area. And at the same time, let me tell you that yes, there were 24 cases of poaching of single-horn rhinos. But as I said, we have taken effective action. It would have been much more number,
because there are international gangs, there are profits for them. And we have taken steps for stopping illegal trade of wildlife. That also we have done. So we are going ahead with that, and we need support. One by one. Prakash ji, एक मिनट क्या? Yeah, Yeah. agreed. Yeah. Myanmar government or the Bangladesh or China government. We are taking with respect to wherever the cooperation with all the neighboring countries as well as where the illegal trade happens, we are working with international community to stop this. Okay, thank you, sir. Yeah. Prakash ji. Banerjee, 1 minute. Ask your question briefly, if you don't mind. ब्रीफली आई एम आस्किंग प्रकाश जी, काजीरंगा जो फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क है, उसमें जो एनक्रोचमेंट हो रहा है एवं डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसके लिए आपका सरकार क्या कर रहा है और आसाम गवर्नमेंट को आप क्या निर्देश दिया? नहीं, इसके हम तुरंत रिपोर्ट मंगवाएंगे, क्योंकि जब मैं 2 दिन गया था तब एनक्रोचमेंट की बात तो नहीं आई थी हमारे यहाँ, क्योंकि मैं खुद 2 दिन रहा वहाँ, सब गांव वालों से मिला। लेकिन अगर क्योंकि उस समय पानी भी था, अब एक बार जब पानी नहीं है तब जाने की ज़रूरत है, और हम जरूर इसका रिपोर्ट मंगवाएंगे। Yeah, Akash West. Yeah. यस यस Is the government planning any emergency measures under the Environment Protection Act? And secondly, what is the government doing to increase the biodiversity management committees, which at present are very few in number in the country? Yeah, we want to increase biodiversity management. Today only we have taken review, and biodiversity management, we want to preserve. Now the guidelines are issued. Today the Ayurveda medicine manufacturers had also come, they had their views, but we have decided to increase the biodiversity documentation and all efforts. So there will be new chairman for National Biodiversity Authority very soon. Yeah, Selvaraj, no? You're 12, yeah. Sir, Paul Murugan. Sorry. Sir, Yes. in last January, you informed us that you are going to remove that bulls from performing animal lists. So whether government is keep on that or going to lift? See, we cross-checked, we want to do it. We want to allow cultural practices and celebrations without cruelty to animals. But there are some legal issues. So we had detailed consultation with legal department and Attorney General, and then we may need some amendments. So that also will be carried out when we carry out overall amendments. My question basically is, since you said that there are many industries that have been shut down for polluting, would like to know where these industries are. We'll give you the list. Yeah, We'll the give you the details list. of that. And But they have also, after improved, I will give 2 lists, which we closed, which improved, and which are still closed. Yeah, And 92. one more question I had is about the environmental clearances. If we could have some consolidated statistics of how many clearances have been given in the last 1 year. I'll give you one good, wonderful statistics, that whatever projects are approved, particularly in forest area, so private produce, if there are private projects, they have to give additional land to the forest, which I explained. And such 20,000 hectares have been added to new land added to the forest by such process. Yeah, please, that lady there, yeah. Sir, Anshu from CNBC TV 18 on your right. Yes. So my question is, 60,000 home buyers have written to you as well as Prime Minister's office. All the formalities with regards to notification for the Okla bird sanctuaries have been completed in January. So why there's no reply from the government, and how soon can we expect You it? will have soon reply, very soon. But how soon, sir? You've been saying this No, from but the this I am past. saying, but now it is really so. बालकृष्ण आज तक से Yes. सर, पूरी दुनिया में दिल्ली की बदनामी हो रही है कि जहाँ की हवा जो है सांस लेने के लिए सबसे ज़्यादा जहरीली है, पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा है, लोग दिल्ली छोड़ के कई एक्सपर्ट्स बाहर के जा रहे हैं। मेरा सवाल है कि क्या रोड मैप है दिल्ली की हवा को बेहतर बनाने के लिए, यहाँ दिल्ली में पोल्यूशन कम करने की? जैसे मैंने कहा,
दिल्ली केवल दिल्ली का नहीं है, इसमें पंजाब में स्टबल बर्निंग होता है, हरियाणा में होता है, राजस्थान से धूल आती है, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज का पोल्यूशन गाजियाबाद के आसपास अगर हो रहा है, तो इस सब का भी परिणाम दिल्ली का एक ही एयर शेड है। इसलिए मैंने यूज़ किया है शब्द NCR एयर शेड। वो केवल दिल्ली कॉरपोरेशन लिमिट में प्रदूषण नहीं होता है, सब जगह होता है। तो इसके सभी लोगों को साथ लेकर, अब स्टबल कोई काटता नहीं था और जलाते थे, पंजाब सरकार ने 50% सब्सिडी दी है, तो लोग सैकड़ों के संख्या में बेल मशीन खरीद रहे हैं, तो स्टबल कट भी रहा है और बेल्स बन रहे, तो बर्निंग कम होगा। यहाँ बायोमास बर्निंग होता था, जो कचरा साफ करने वाले हैं सफाई कर्मचारी वही जलाते थे, उनका अवेयरनेस कैंपेन किया, उसका व्हाट्सएप का कैंपेन दिल्ली सरकार ने किया, तो उसका भी एक कंट्रीब्यूशन हुआ है, थोड़ा जलना कम हुआ है। तीसरा, ये 3 महीने का कार्यक्रम है, शॉर्ट, बट दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हरियाणा और दिल्ली सरकार और बाकी सब पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि जिससे ओवरलोडेड ट्रक्स नहीं आएंगे और दूसरा उनके कारण पूरा जाम नहीं लगेगा, ये भी एक प्रयास शुरू हुआ है। तो हरियाणा सरकार ने और NHAI ने रिंग रोड जो बनना है सेकंड दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण, तो जो बाईपास बनना है उसकी अब 10 साल से केवल चर्चा हुई है, अब इस साल एक्चुअली काम शुरू हो रहा है। तो इसलिए आने वाले 2 साल में दिल्ली में जिनको नहीं आना है ऐसे वाहन दिल्ली में नहीं आएंगे, ये व्यवस्था कायम होगी। कुछ काम 3 महीने में होगा। अब जुलाई में फिर हम एक दिन भर की बैठक करेंगे सभी एजेंसियों को लेकर, किसी को दोष नहीं दे रहे, हम सब मिलकर सुधरेंगे, और इसलिए ये चैलेंज हमने लिया और इसीलिए एयर क्वालिटी इंडेक्स किया। वही आप छापो, वो दिखाओ आज तक पे, यही तो मेरी इच्छा है, क्योंकि लोगों को सही चित्र दिखेगा। एक दूसरा, ये केवल 10 महीने में तो नहीं हुआ ना, 1 साल में तो नहीं हवा बिगड़ी, हवा 2007 से बिगड़ रही है बहुत ज़्यादा। उसी समय अगर चर्चा मीडिया जितना आज कर रहा है मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी मीडिया ही वाला हूँ, तो इसलिए आप जो कर रहे हैं अभी, अगर शायद काश पहले ही शुरू होता तो पहले ही हवा सुधर जाती। प्रकाश जी, मैं कविता हूँ, हरिभूमि न्यूज़पेपर से। Yes. मेरे 2 छोटे सवाल हैं आपसे। पहला सवाल ये है कि आपने अभी कहा कि ऑनलाइन अप्रूवल्स के लिए आपके पास एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट क्लियरेंस के 3200 प्रपोजल्स ऑनलाइन आ चुके हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पर्यावरण मंत्रालय ने बीते 1 साल में ऑनलाइन प्रोसेसिंग तो शुरू किया है, कितने प्रोजेक्ट्स को अभी तक आपने अप्रूव कर दिया है सर? ये एप्लीकेशन के बारे में 505 आपने, और 721 टर्म्स ऑफ रेफरेंस। अच्छा। और सर एक छोटा सा सवाल और है, आपने ये बताया था कि जो रीलोकेशन प्रोग्राम की आप बात कर रहे थे कि 4 प्रोटेक्टेड एरियाज में आपने 651 परिवारों को रिहेबिलिटेट किया है, उनके इच्छा पर। हाँ, उनकी इच्छा पर वॉलंटरियरली आपने किया है ना सर? ये किन स्टेट्स में है ये प्रोटेक्टेड एरिया? किया, हमने मदद की। किन स्टेट में है सर? ये थोड़ा सा इसका डिटेल ये देता हूँ डिटेल्स। हाँ, 150, यस। प्रकाश जी, मैं संजय शर्मा हूँ, वीर अर्जुन अखबार से। जी सर, अभी वन्य जीव संरक्षण की आपने बात की, अभी कुछ दिन पहले अभी आपके कृषि मंत्री यहाँ आए थे, उन्होंने पल्सेस की घटती हुई जो उत्पादन उसके लिए ना नीलगाय को बहुत बड़ा जिम्मेदार ठहराया था, जो कि भारत सरकार से संरक्षित जो सूची है उसमें आता है। उन्होंने कहा था हम बहुत जल्दी भारत सरकार से इस सूची से हटवाने जा रहे हैं ताकि इसका शिकार हो। तो क्या आपका मंत्रालय इससे सहमत है? नहीं, कल वो मंत्रियों और मेरी मीटिंग भी हो गई। ऐसा है, एक सर्कुलर हमने पहले ही जारी किया है कि जहाँ अगर कुछ प्राणियों की संख्या ज़्यादा हो गई, जैसे ब्लू बुल है या वाइल्ड बोर है, तो ऐसे जहाँ बहुत किसानों को तकलीफ हो रही है, ऐसे विषयों में वो फॉर ए पीरियड इन ए स्पेसिफिक एरिया फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड उसको वर्बिन घोषित करने की एक नियम है इसी कानून के तहत। तो जैसे ही राज्यों का प्रपोजल आएगा हम तुरंत उसको परमिशन देंगे फॉर ए लिमिटेड पीरियड। Yeah, a large number of hydropower projects are coming up in Arunachal Pradesh. Some 155 MOUs have been signed, and this is likely to lead to a lot of deforestation. So is your ministry planning to order some kind of independent study, assessment study? No, we have already carried out in all the basins, means Uttarakhand, means Arunachal, in other basins also where there are large hydro potential. We have already taken a holistic view of what will be the environmental impact. And our recent affidavits in courts
testify to our stand to conserve nature and ensure development without destruction. And new norms for emission in thermal plants. You are talking about hydel, which are clean energy. But even thermal plants, we have made new norms. Yeah. Yes. Please, 63. So my name is Ruchika Talwar. I am with Z News. ये coastal regulation zone जो है, इसके ऊपर जो committee बनाई गई थी, उसकी report आने वाली थी या आ चुकी है, और उसमें किसी किस्म का बदलाव कोई आने वाला है, high tide line में तब्दीली आएगी, या how is the ministry, how are we prepared or better prepared to meet tidal challenges, let's say like the tsunami? देखो, it's a very important issue. We have 5,500 kilometers of coastline. And if we add our islands where people stay, it becomes 7,500 kilometers of. And so, this is very important issue. We must preserve marine ecology. We must maintain ocean balance, mangroves, and all other characteristics of the sea. And therefore, that is our real mandate. How to achieve that? What are the best practices of the world? And also, how we can still create an ambient system in the country which will take care of both tourism, development, as well as the ecosystem maintenance. So, a fine balance will be drawn. We are already working on that report. Shailesh Naik committee report is with us, and in a time-bound manner, we'll take decisions. Yeah, 50. Yeah. प्रकाश जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को स्वच्छ भारत की कल्पना की थी, और अभी 1 साल होने को आ रहा है आपके भाजपा के शासन को, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जगह जगह जो काम चल रहे हैं मेट्रो के या जो और काम चल रहे हैं, उसके कारण दिन रात सड़क पे ट्रक जो हैं वो धूल उड़ाते हुए चलते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि ट्रकों को जो है वो ओवरलोडिंग के बाद उनको ढक के चला जाए, लेकिन उस पर कोई काम नहीं होता है। इसके अलावा प्रेशर हॉर्न जो है वो इतना ज़्यादा दिन रात बजता है कि बहुत ज़्यादा दिन रात जो है हॉर्न की वजह से दिल्ली में लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं होता है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ऐसा है, ये सही है, लेकिन मेट्रो का इतना बड़ा काम होता है, रोज इतना धूल निकलती है वहाँ से, लेकिन एक भी धूल हवा में नहीं दिखती। क्यों? श्रीधरन जी के ज़माने से वहाँ बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया के वेस्ट मैनेजमेंट के लागू है। हमने उन्हीं से सीख लेके जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, भवनों का निर्माण हो रहा है, उनको भी वैसे ही स्टैंडर्ड सब लगा रहे हैं। उसकी तैयारी हमने की है। वही तो है वेस्ट रूल्स, सॉलिड वेस्ट रूल में कंस्ट्रक्शन वेस्ट के भी रूल्स उसी में नए दिए हैं। आप उस पर कोई कड़ा करने के लिए कोई संदेश देना है तो वो भी दे दीजिए उसमें सुझाव, लेकिन अमल की जिम्मेवारी राज्यों की है, लेकिन उसके लिए नियम और पेनल्टीज कड़े करना हमारा काम है, जो हम करेंगे। प्रकाश जी, 72, then after 74. Yeah. प्रकाश जी, आपने एनिमल वेलफेयर के लिए डिग्री और डिप्लोमा कोर्स का बात कही है, क्या ये मंत्रालय का खुद का रहेगा या किसी मिनिस्टर ने किसी यूनिवर्सिटी के साथ अटैच करेंगे क्या? हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर है, वो इन कोऑर्डिनेशन विद सम यूनिवर्सिटी विल कंडक्ट दिस कोर्सेस। उसके लिए हमारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वाला प्रोसेस हुआ है। 8-10 यूनिवर्सिटीज़ ने इंटरेस्ट दिखाया है, उसको हम जल्दी फाइनल करेंगे। Sir, one more Greenpeace staff, international staff has been banned from entering India today. Will you please give her comment? No, but we have nothing to do with that. Means we are not doing this. These are different ministries. Doing for security of the country is a different thing. We value NGOs' participation. We value NGOs' participation. And we have conducted a workshop recently and a meeting, consultation meeting of more than 125 NGOs who are working in the field with the masses in forest, in wildlife management, in many other things. NGOs are not only one or two, there is no monopoly. Yeah, 91. Yeah. Just now you mentioned that
that there are 75% of Speak into the mic, madam. माइक नहीं, आवाज आ रहा है, आप पकड़ो। Hello. Just now you mentioned that 75% of the tigers are in India. 70. 70. And we are hearing some reports that there is some government is considering replacing tiger with lion as a national animal. Wrong information. Yeah. Next. So tiger is or will remain the national Wrong animal? information. Jadekar ji, there are two reports on Western Ghats, you know. Western Ghats. Kasturi Rangan and Gadgil. Even after 1 year, why can't you take a stand on that report? The कस्तूरी रंगन रिपोर्ट कब मिला था हमें? नहीं, ज़्यादा हुआ। 3 साल पहले कस्तूरी रंगन रिपोर्ट आया था। First 2 years nothing happened. Last year we have taken all the 7 states concerned into confidence and asked them to do what exactly Gadgil and Kasturi Rangan committees have said. Ask people what kind of activities they want to prohibit, what kind of activities they want to regulate, what kind of activities they want to allow. So it's a big democratic exercise which is already near completion in all the 7 states. And we are expecting by 30th June, we will receive all the reports and thereafter we'll start process further and come to a decision. Yeah, that gentleman, please. प्रकाश जी, विजय त्रिवेदी हूँ न्यूज़ नेशन से। Yes, विजय जी। प्रधानमंत्री जी का एजेंडा है विकास का, डेवलपमेंट का, और आपका एजेंडा है पोल्यूशन कंट्रोल का। आमतौर पर ये माना जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, पोल्यूशन कंट्रोल और डेवलपमेंट। आपकी छवि जो है एक बहुत ईमानदार मंत्री की होती है, तो क्या आपको मुश्किल आ रही है इस पूरे दोनों चीज़ों को एक साथ चलाने में, या कोई दबाव इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आ रहा है? नहीं आता है, क्योंकि मुझे लगता है आप मीडिया का एक बड़ा अच्छा रोल है इसमें कि आपने पर्यावरण के बारे में ऐसी जागृति पैदा की है, तो लोगों में भी एक नई जागृति आई है, तो इंडस्ट्रीज़ भी मोर रिस्पॉन्सिबल हो रहे, और इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई परस्पर विरोध नहीं है। विकास बिना विनाश, डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन इज पॉसिबल, और यही हम कर रहे हैं। 111 there. So regarding the Mullaperiyar Dam, National Wildlife Board Standing Committee has earlier given permission for the EIA study, and after that the EIA committee also have given the study permission. But your ministry has had clarified it within 2 hours that you haven't given any permission for the study. So is that because of any political pressure from Tamil Nadu? No. Or else, it is not a political pressure. It is clarification is correct because it states the facts. So we want to dispel the rumors. See, the permission for environmental impact analysis study is granted by expert appraisal committee and not by NBWL. So expert appraisal committee in their latest meeting has not given any TOR, so there is no issue. Sir, one more question that you just said that the Kasturi Rangan committee reactions from the state governments will receive on June 30th. So is it extended more, because earlier it was June 15th? No, it was, now it is final by 30th June all states have to give. Kerala has already given. No, 30th June is the only last date. No more. We are Ravinder. We are not extended. प्रकाश जी, Yes. आपकी ईमानदारी की तो चर्चा विजय जी ने किया है जी। जिसके कारण से आपका डिपार्टमेंट बदनाम रहा है पहले, यानी जयंती टैक्स, उसके खिलाफ 1 साल में आपने क्या कार्रवाई की, और जिनको अनुमति मिली थी गैर कानूनी ढंग से पर्यावरण के क्लियरेंस का, वैसे लोगों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की पिछले 1 साल में, इसके बारे में भी बता देंगे? पहले तो मैंने जैसे शुरू काम किया तो मोदी जी ने भी पहले क्या हुआ इसकी ज़्यादा हमने चर्चा नहीं की, हमने आगे काम शुरू कर दिया पहले। और दूसरा, हमने जयंती जी ने जो पत्र लिखा कि बाहर से राहुल जी के ऑफिस से कैसे दबाव आता था, ऐसे कुछ उदाहरण दिए हैं, तो उसके बारे में मैंने अधिकारियों को कहा है कि क्या वहाँ कोई फाइल में ऐसा कुछ दिखता है तो वो देखिए। Yeah, Siddharth.
Sir, two questions. Wanted to first ask you, you talked about pollution and you said that various states have a contributing role in this. Haryana, Punjab have farm waste burning, Rajasthan has dust. As far as the issue of trucks is concerned, sir, a lot of trucks which are not destined for Delhi are still entering despite a Supreme Court order. So who do you hold responsible for that? Is it the center? Is it the state government? So who should be cracking down on this? No, for not having bypasses, the earlier governments are responsible. Definitely, they should have done it much on priority basis. But now NHAI and the new Haryana government has taken it up seriously, and I think by next month, both the tenders will be awarded. And sir, very briefly, the NCR board is meeting tomorrow. They'll be looking at perhaps opening up the Aravali's for commercial exploitation. What is the central government stand on this? Will it allow for change of land use? Because the Haryana government right now seems to be pressing the same proposal which the Huda government had proposed to allow for commercialization in some respect. For wildlife areas, protected areas, the proposal will come to us and we will see the sustainability of the forest and ecology as an important yardstick. प्रकाश जी, मेरा सवाल इन्हीं से रिलेटेड था, जो ट्रक और इस सरकार की बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है, एनजीटी ऑर्डर करता है कि पुराने डीजल व्हीकल्स को हटाया जाए। आप भी कहते हैं कि दिल्ली से हटाया जाएगा, दिल्ली से हटाकर फिर कहाँ ले जाएंगे उनको? जहाँ ले जाएंगे वहाँ पोल्यूशन फैलाएगा वो। तो ऐसा कोई सरकार पॉलिसी ला रही है कि इतने साल और इतने नॉर्म्स होने के बाद वो ट्रक या वो गाड़ियाँ ऑटोमेटिकली सड़क से हट जाएं, उनको डैमेज कर दिया जाए जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है? इसमें बहुत सारे उपायों पर विचार चल रहा है। पहले तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री 80,000 करोड़ की लगभग इन्वेस्टमेंट करके कैसे अपग्रेड कर सकते हैं फ्यूल, उसका टाइम टेबल जो है क्या वो प्रीपोन कर सकते हैं, दे आर थिंकिंग पॉजिटिवली। द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट led by Nitin Gadkari ji is also thinking of how to make engine compliant for a new regime of less pollution. So that's also what can be the timetable. They are thinking both. More importantly, the PUC standards and the PUC systems have to be really improved. The PUC must be really pollution test. And to that end, we want to use technology. We are studying the Bangalore model of putting some a small equipment in the exhaust pipe so that you get the correct PUC. So that kind of improvements, all kinds of improvements are suggested and are on board. Yeah, Yogi. प्रकाश जी, आपने एक साल में बताया है अपने मंत्रालय की दिशा और दशा सुधार दी, लेकिन राज्यों के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में दिशा और दशा ठीक नहीं है। वन भूमि पर 2 राज्यों में, एमपी में और उत्तर प्रदेश में 30 लाख से ऊपर की वन भूमि पर अवैध कब्जे हैं। इस दशा में आप राज्यों के ऊपर मामला छोड़ते हैं और राज्य आपकी तरफ देखते हैं, ये दशा कब सुधरेगी? ऐसा है, ये सही है कि वन भूमि पर पहले बहुत अधिक आक्रमण हुए हैं। हमने पहले तो कितना आक्रमण कहाँ क्या स्थिति है इसके मैप्स और हर एक जिला की, हर एक जंगल की जो सिचुएशन है, वास्तविकता है, वो मंगाई है। और इसलिए by 1 or 2 months we'll be knowing the picture of what is actually happening in jungles. We are using latest technology to also find out. Now tree cutting, illegal tree cutting or things will be difficult because with the help of technology we can monitor new plantation and how it is growing every year. Nobody can fudge. So there are so many new technologies which we are using to stop this. But after all, stopping encroachment is a state government's job, and we are working as a team India. It's a PM-CM team. And all the important 400 officers of forest, climate change, of environment, pollution, all were there. And I think we have done many other things. I have held 3 Chintan Shivers, one in Bengaluru, one in Guwahati for our officers. And it was good experience. We had held 1 3-day conference. So all put together, we'll continue our dialogue with state governments, effective coordination, and by that only we can improve. आनंद पांडे। प्रकाश जी, आनंद हूँ इंडिया टीवी से।
दो सवाल हैं, दोनों सवाल गंगा सफाई से जुड़े हुए हैं। आपके अपने वरिष्ठ नेता हैं मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने कहा था कि जिस स्पीड से और जिस तरीके से काम चल रहा है उसमें गंगा नदी को साफ करने में 50 साल से ज़्यादा का वक्त लग जाएगा। इस पे आपका क्या जवाब है? दूसरा उससे जुड़ा हुआ है कि आपके अपने सांसद ये सवाल उठाते रहे हैं कि गंगा नदी खासतौर से कानपुर और उन्नाव के आसपास जो गंगा नदी है उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनमें जो स्लॉटर हाउस से जो टैनरीज है वो जो लीगल है जो इलीगल है, दोनों से जानवरों का जो कच्चा खून है वो बिना ट्रीट किए हुए उसको नदी में मिलता है, इससे गंगा और प्रदूषित होती है। जबकि राज्य सरकारें या फिर जो आपका मंत्रालय जो भी एजेंसी जो कार्रवाई नहीं करती उनके खिलाफ। आपने यानी जिस भाव से, अच्छे भाव से सवाल पूछा, मुरली मनोहर जोशी जी का भी वही भाव है कि जल्दी साफ होना चाहिए, तो वही काम हम सब कर रहे हैं। तो उसमें ये मुद्दा है कि टैनरीज का जो इशू है और स्लॉटर हाउसेस का है, तो टैनरी के सबकी मीटिंग एक ही अनेक बार की, और टैनरी का प्रदूषण रोकने के लिए एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट विद जीरो लिक्विड डिस्चार्ज बन रहा है, जिसमें 40% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है और राज्य सरकार देगा, वहाँ के लोग थोड़ा देंगे, ऐसा सब करके, और कुछ लोन मिलेगा, सब मिलके ये प्रोजेक्ट जल्दी पूरा होगा। लेकिन फिर भी उसको आने 2016 की दिवाली तक ये पूरा होगा, फिर वहाँ का कोई प्रदूषण नहीं होगा। कुछ जो समय लगना है वो लगना ही है, लेकिन बाकी अनेक इंडस्ट्रीज़ का पोल्यूशन, जैसे मैंने कहा वो लिकर का ब्लैक लिकर डिस्चार्ज जो था कंप्लीट समाप्त हुआ, अनेक उद्योगों ने 24/7 मॉनिटरिंग डिवाइसेस बिठाए, उनका ख़त्म हुआ। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बड़े पैमाने पर ख़त्म हुआ है। सॉलिड वेस्ट के हम नए रूल्स अगस्त से लाएंगे तो अगले साल तक उसमें बहुत फर्क आएगा, तो वो भी कचरा जो जा रहा था वो जाना नदी में बंद होगा, नदी का इको फ्लो भी बढ़ेगा और बाकी भी ड्रेन्स वहाँ नहीं जाएंगे गंगा में, इसका भी व्यवस्था हो रहा है। तो मुझे लगता है सब मिलके, देखो मैं हमेशा कहता हूँ गंगा मैली इसलिए नहीं हुई कि पापियों का पाप धोते धोते, इसलिए मैली हो गई कि वहाँ औद्योगिक प्रदूषण जा रहा है, 80% सीवरेज जा रहा है। अब आज़ादी के बाद 70 साल की कहानी ये है कि 80% सीवेज ट्रीट नहीं होता है और सभी नदियों में जा रहा है, सभी नदियाँ इसके कारण खराब हुई है। तो इसको सुधारना है तो समय लगेगा, लेकिन शुरुआत हुई, दमदार शुरुआत हुई और रिजल्ट आएगा। Yeah, we'll take last two questions. Yes. 46, yeah. Yeah, Andali here, sir. Yeah, Javed 129 first. Yeah. Yes. हाँ बोलो। मैं बोल रहा हूँ भाई, बोलो। हाँ मैं कह रहा हूँ जावेदकर साहब, आपकी जब सरकार आई थी तो एक स्वच्छ भारत का एक सपना दिखाया था लोगों को, और ख़ास तौर से दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए अब भी आप लोग काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले 10 दिनों से दिल्ली कचड़े का शहर बन गई है, और ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है आपके से भी लोग तवक्का रखते थे कि कम से कम बीमारी ना फैले, जहाँ जाइए कचरा। और कभी आप लोगों ने इस तरफ तवज्जो दी? मान लिया दिल्ली गवर्नमेंट के MCD पे लोग इल्ज़ाम डालते हैं, आप कहते हैं दिल्ली गवर्नमेंट पे, लेकिन आमतौर से शहरी तो सफ़र कर रहे हैं बुरी तरह से। और दूसरा ये कहना ये है कि आपके जब स्वच्छता अभियान चला था, ये लोग स्ट्राइक पे थे, तो कम से कम बीजेपी वर्कर तो इस वक्त आ जाते लोगों की मदद में। हाँ नहीं, आप भी स्वच्छता के लिए इतने उत्सुक है, जागरूक है, तो आपके साथ हम तो खड़े ही हैं, और यही सबका मिलके ही ये मिशन है। स्वच्छ भारत किसी एक एजेंसी का मिशन नहीं है, सबका मिलकर है, और इसीलिए पोल्यूशन को रोकना हमारा काम है, पानी को साफ करना, और ये सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट उस शहर का है। आपको पता है अब ये जो समस्या आई है कि तनख्वाह नहीं मिला, शायद कुछ हुआ है, इसके कारण यहाँ हुआ है। 21 शहरों में एक कॉन्ट्रैक्टर थे, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी, वो आधा काम छोड़ के भाग गई। अब क्या करें? तो ये नियम बदलने हैं, इसलिए हम नियम भी बदल रहे, कानून भी बदल रहे, दंड भी बढ़ाएंगे, और ऐसा नहीं होने देंगे तो रोज़ का रोज़ कचरा साफ होगा, और लोग भी बदल रहे। तो इसलिए नहीं, चिट्ठी क्यों लिखे, हम बात ही करने में विश्वास करते हैं। This is Nikhil from DNA. You said that you gave a clearance for the coastal road in Mumbai today. Mr. Fadnavis principle. Yeah, you met Mr. Fadnavis today. When he met you last time, you said that the state has to create a proper policy on reclamations and coastal projects. So could you please tell us what exactly have they presented to you when you gave the clearance? We were in discussion with the state government, and what we wanted to ensure 3 things.
कि जो लैंड रिक्लेमेशन होगा वो कम से कम होगा, दैट दे एग्रीड. Then on that reclaimed land there will be no commercial activities. It will be open to public. ये भी मंजूर हुआ. किस नियमों में होगा, कैसे कानून से होगा, कैसे बायलॉज में रहेगा, कहाँ कहाँ रहेगा, ये सब तय हुआ. और सबसे मुख्य बात है कि ये जो कोस्टल रोड के कारण, जो रिक्लेमेशन के कारण हाईटाइड लाइन जो अभी है 500 मीटर की, कि जहाँ से कंस्ट्रक्शन उसके बाद होता है, तो वो कंस्ट्रक्शन की लाइन उसके कारण आगे नहीं आएगी, वो वही बनी रहेगी. तो ये उसके मुख्य बिंदु थे. तो इस पर चर्चा हुई, जब दोनों की सहमति हुई तभी तो हमने आज घोषणा की है. That's really the last question. Yes. बोलो, it's all right. बोलो, मुझे सुनाई दे रहा है. Hello, this is Tuhin from PTI. Yeah, Tuhin. You just said that from 2007 Delhi's air was really deteriorating. So are you really blaming the previous UPA regime for the poor quality of air here? I am not into blame game, but let me tell you, these are scientists telling कि हवा आज नहीं बिगड़ी ना, हवा तो 8-9 साल से बिगड़ के यहाँ तक आ गई, तभी आवाज़ उठाना चाहिए था. इसलिए मैं सबको आह्वान करता हूँ कि कोई भी चीज़, अभी जैसा आपने कचरा नहीं उठाया पिछले 4-5 दिन से, तो आपने तुरंत पूछा कि नहीं. यही जागरूकता अगर पहले भी होती तो और जल्दी होता. वो भी सरकार तो काम ही करती ना, आपका दबाव नहीं था तो नहीं हुआ. Thank you, Honorable Minister, sir. Thank you.